Good morning, student. So let's wait for 2 3 minutes, 2 minutes more, because a student is joining now. So within 1 or 2 minutes, we will start soon. Yeah. So am I audible to everyone? You can put your response on the chat room. Okay. Thank you. So great. Now 19 minus 2, 17. Okay. 17 students have been joined this lecture. So let's begin. Okay. So any query till now from the last lecture? So you can directly ask to me, or you can put up your query on the chat box. If any query, please go ahead with the query. So let's begin the lecture. Okay, as you can see on your screen, I think this screen is visible to everyone. Anyone reply? And Yes, sir, it are is you visible. seeing Yes, the? sir. Yes, sir, it is visible, sir. Okay, thank you. Okay, thank you. So here you can here I just show the software evolution. Okay, so as you can see how the software is beginning now. Okay, and I think all of you are aware of all these things, but I take 1 or 2 minutes on this and then move on to our basic subject. Okay, so here as you can see my cursor. Okay, so is there any? Okay, all set 5. Okay, here is okay. Fill to ball pen point. Okay, so as you can see here, this is binary. Let's change the color. Ink red. Okay. As you can see here, at the beginning, we work on the electrical things, means current 0 and 1. Okay, then integrated circuits, IC come in the picture, and I think in the fundamental of computer, we have studied all these things. Okay, now it was very difficult to think how to write down a program to add the two, even though to add the basic number was a very big challenges at that days. Okay, because to remember and to modify to design the circuit is a very difficult. Okay, so to overcome such a problem, they come on to assembly language. Okay, so you write add r1 r2, so you should have the knowledge of some register, how register work, and architecture of the computer. Till now you are dependent on the system. Okay, or you can say architecture of the computer. Now to make it portable, the people develop some language like C, Pascal and all these things, that is called the procedural oriented language. तो अच्छा, जब तक ये डेवलप नहीं हुआ तब तक ये पता नहीं था कि ये प्रोसीजर है या नहीं है, लेकिन क्योंकि हम उसमें फंक्शन यूज करते हैं, प्रोसीजर यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल द प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज. ओके, सो कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी व्हाई वी कॉल सी एज ए सी? इट इज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर. Anyone? Either you reply in the chat box, or you can just open your mic and reply it, and after reply just switch off, just put your mic on the silent mode. Why we call C as a C language? Why C call C? C को C क्यों कहा जाता है? क्या बच्चा? अरे पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, पढ़ाने को. ठीक है. Sorry, my daughter is there. So the disturbance. Okay. Any query from your side? No query. Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. So reply in yes or no, so that if you know, then you reply. If you don't know, then you still reply, so that I am reply to you. नहीं सर, हमें नहीं पता सर. ओके, तो चलिए सी को सी क्यों कहते हैं समझ जाते हैं. देखिए, then when the assembly language was developed, this is called, here you can see there is an assembly language. When it was developed, it is called A language. Is it clear?
Sir, excuse me, sir. Okay, A means assembly language. Then on that basis, some language was developed. That language is called the beginner language. So it is begin from B, beginner language. Is it clear? Okay. Excuse me, When sir. Dennis Ritchie evolved the new language, here it called here new language on based on Unix. Okay, based on इसमें लगता है मेरे को वो खरीदना पड़ेगा, लाइक जो पेन पैड होता है, जो भी कह लीजिए, यूनिक्स. ओके. And because A was developed, B was developed, so he thought that what should be the name of that language, because A, B, and in sequence it call it C. Is it clear? Yes. Hello? Excuse me, sir. Sir, hello, sir. Yes, हाँ sir. सर आप थोड़ा सा हाँ, एक बार बोलो हिंदी बोलो. सर हिंदी में एक्सप्लेन कर दो सर. इंग्लिश थोड़ा वीक है सर मेरी ना, मुझे इंग्लिश समझ में कोई नहीं बात आती सर. कोई बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. चलिए ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ना बेटा. यस सर. अच्छा, वो आपने बता दिया, नहीं तो मैं अपना भागता रहता. ठीक है, सर जब भी आपको इंग्लिश कोई दिक्कत हो बहुत तो आप कमजोर बता है सर दीजिए, मेरी. क्योंकि जब तक बेस नहीं क्लियर होगा तो आगे समझ में नहीं आएगा. तो इसको मैं थोड़ा ले रहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों आई, मतलब क्यों इसे इजाद हुआ. ठीक है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब कंप्यूटर बना, आर्किटेक्चर बना, या इलेक्ट्रिकल जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आए, तो 1 0 में काम होता था. अब 1 0 में काम होने को ऐड करने में बड़ी दिक्कत होती है. ठीक है भाई, कितना याद रखोगे कैसे. अच्छा, पहले जब ये 1960 की बात करें या 1970 की बात करें, इन आईआईटी कानपुर काइंड ऑफ थिंग, पीपुल जस्ट ऐड दी 2 नंबर ऑन दी पंचिंग कार्ड, और वो जब ए और बी को ऐड करने के लिए उनको कम से कम कई घंटे लगते थे, 10 आवर, 12 आवर, 24 आवर. अभी आपको ए प्लस बी करना हो या 2 नंबर को ऐड करना हो, कैलकुलेटर निकालो, फटाक से विद इन सेकंड आप कर दोगे. ठीक है. तो वो भी पंचिंग कार्ड डाल के उसमें छेद करके वो 1010 सीक्वेंस बना के तब करते थे. उसके बाद क्या हुआ कि असेंबली लैंग्वेज आ गया. ठीक है. तो असेंबली लैंग्वेज में आप लिखते हो, अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा हो या कुछ आपको थोड़ा बहुत भी हिंट हो, तो उसमें लिखा जाता है ऐड R1 R2, मतलब R1 R2 को ऐड करके रजिस्टर R1 में डाल दो. ठीक है. तो उसको भी याद करना थोड़ा टेढ़ी खीर था. तो फिर आया एक अदर लैंग्वेज की हाई लेवल लैंग्वेज जिससे बोला गया. सो ऑल दिस आफ्टर असेंबली लैंग्वेज, द लैंग्वेज कम इन द इंग्लिश. ओके, इंग्लिश लैंग्वेज कि जैसा ह्यूमन बीइंग पढ़ता है, बोलता है, तो वैसी लैंग्वेज बना दी जाए. ठीक है. तो वो बेस्ड ऑन इंग्लिश, यहाँ पे ऐसा होगा. ठीक है, क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूं तो थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, वैसे भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं. सो दिस इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड दी हाई लेवल लैंग्वेज. तो मैं ये कह रहा था, मेरा सवाल ये था, सी को सी क्यों बोलते हैं. क्योंकि जब ए लैंग्वेज बनी, दिस इज ए वाज डेवलप्ड. मैं पेन चेंज करके देखूं. ओके, हाइलाइटर. ओके. व्हेन ए वाज डेवलप्ड, हाँ ये सही है. सो इट इज असेंबली लैंग्वेज और डेवलप, इट इज कॉल्ड ए. ओके. उसके बाद एक और लैंग्वेज इजाद की गई जो थोड़ा मॉडिफाइड करके बनाई गई थी, उसका नाम कर दिया गया बिगनर लैंग्वेज. तो बिगनर किससे हुआ, बी से. ठीक है. तो डेनिस रिची एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, दैट इज स्पेस प्रोजेक्ट. डेनिस रिची इज basically developed the C. So basically C was developed on Unix. Okay, so you can see basically that language is developed to transfer the file from one place to another place. क्योंकि अगर स्पेस में कोई भी एयरक्राफ्ट जाता है या एयरशिप जाती है, तो हाउ टू इट सिग्नल फ्रॉम द अर्थ. ओके. So we required one operating system that work on the machine basically. Okay, so he developed and as you can see today now in the communication and networking, this Unix is used. आप विंडो में काम कर लीजिए, किसी में काम कर लीजिए, लेकिन जब आप कंप्यूटर नेटवर्क पे आते हैं तो उसकी जो प्रोग्रामिंग लिखी होती है, सॉकेट प्रोग्रामिंग, वो किसमें होती है, यूनिक्स पे होती है. ठीक है. Even though your Android phone is developed based on Unix. Okay, clear. Now, as you can see, the whole world, जो पूरा संसार है, is moving from Windows to Unix. Okay, so उसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया बेस्ड ऑन यूनिक्स, लेकिन नाम क्या रखे. तो क्योंकि ए असेंबली लैंग्वेज से ए डेवलप हो चुका था, बिगनर आ चुका था, तो ए बी और उसे सीक्वेंस में नाम रख दिया सी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. Yes, sir. कौन सवाल पूछा था सर? कुछ स्टूडेंट एडमिट, अच्छा एडमिट नहीं है. अरे तो बताओ ना. एडमिट के लिए बाहर निकलना पड़ेगा. बाहर निकलने के लिए स्पेस कीप
अच्छा इसमें एडमिट, जस्ट मिनट। अच्छा एडमिट, एक ही तो स्टूडेंट नहीं, दो तीन है हर, ये दिक्कत है। It is my request to all of you, please all of you join the lecture within 2 and 3 minutes because दो तीन बच्चे थे। यस नाउ, हाँ किसने सवाल पूछा था उसका क्लियर हुआ कुछ? हेलो हेलो, हेलो इज सर, इट क्लियर? यस सर। यस हेलो, सर। आवाज नहीं 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 आती। सवाल किसी और ने पूछा था, जिससे सवाल जो तो हिंदी इंग्लिश का था। हाँ सर, मैं था सर, मैं सर। उस अभिषेक। सवाल से किसने पूछा था सवाल? हाँ, मैंने पूछा था सर, मैं अभिषेक, हिंदी। अभिषेक क्लियर हुआ? यस सर। हाँ नहीं क्लियर हुआ, मेन चीज क्लियर होना है, क्लियर हुआ? यस सर, हो गया सर, क्लियर हो गया। अभिषेक, हाँ तेज बोलो। सर क्लियर हो हेलो, गया सर। हाँ ठीक है तो आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, क्योंकि आवाज ना धीमे आ रही थी। मेरी ठीक आवाज है, नहीं आ रही सर? सो दिन धीमे, बहुत धीमे आ रही थी इसलिए, अब सही आ रही तो। सो that language after that, but there was some problem in the C language also. ओके, बिकॉज मैं सी लैंग्वेज का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ के आए हैं। ठीक है, पास्कल भी है जो प्रोसीजर लैंग्वेज है, बट बिकॉज व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन फेस इट। ओके, so we are discussing the difference between procedure oriented programming and object oriented programming. So in short, this object oriented programming called OOP, कोई पहले दिन पूछ रहा था सर ये OOP क्या होता है। ठीक है, सो फुल फॉर्म इज OOP इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, कहीं कहीं एस लगा होता है, सिस्टम्स का मतलब होता है। ओके, वो थोड़ा इशू नहीं है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इज दैट इट वर्क ऑन मशीन एंड बट इट इज नॉट रियलिस्टिक काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग। ओके, so to make the more realistic kind of programming, that is like a human being. Okay, so some concepts are developed. Okay, the concept was developed and that concept is called the object oriented programming. And we have seen in the object oriented programming, basically this is a combination of, as you can see this diagram. Okay, last lecture हमने ये diagram देखा था, क्लियर? तो नीचे कर दे। Okay, here you can see that within an object there is a data and there is a function. With this data and function is called the member data and member function of the class. Okay, for the object कैसे हम करेंगे अभी देखेंगे। ठीक है, सो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया ह्यूमन बीइंग, ये दूसरा ह्यूमन बीइंग हो गया, ये तीसरा ह्यूमन बीइंग हो गया, तीन अलग अलग ह्यूमन बीइंग है। देयर डेटा मे बी डिफरेंट, फंक्शन इज सेम बट द रिजल्ट विल बी डिफरेंट बिकॉज डेटा विल इज डिफरेंट। ओके, फंक्शन क्या होगा, काम करने का तरीका हर एक ह्यूमन का एक होता है, लेकिन सबके रिजल्ट अलग अलग आते हैं। क्यों अलग अलग आते हैं? क्योंकि उनके जो फीचर्स, उनके जो डेटा होते हैं, पैरामीटर, वो अलग अलग होते हैं। इसका समझ में आ रहा है? तो इट इज, ये जो है, इट इज ए मोर, गिव द मोर रियलिस्टिक व्यू देन दिस कॉन्सेप्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजरल, थोड़ा इसका मैं कम कर दे रहा। हाँ, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजरल फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। अगर मुझे एक दो लोग रिप्लाई, हाँ अगर मैं एक दो लोगों से रिप्लाई ले लूंगा ना तो मुझे ये पता रहेगा चलो क्लियर हो गया। अगर इसके बाद भी किसी को पर्टिकुलरली किसी को इश्यू होता है देन वो अब मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि एक दो रिप्लाई से ये लगता है कि चलो बच्चे सुन रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगता है पढ़ा किसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। तो ठीक है ना, सो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, सो बाय दिस डायग्राम व्हाट यू कैन अंडरस्टूड, आप क्या समझ सकते हैं? बाय दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टूड दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग बट देयर इज अ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग। ओके, बिकॉज ये फंक्शन इसका डेटा यूज कर सकता है, ये फंक्शन इसका डेटा यूज कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई समझ में नहीं ग्लोबल आ रहा वेरिएबल है और वो सब, ये एनी क्वेरी, कोई सवाल पूछ रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, एनी क्वेरी?
सर अभी आपने बोला सर वो सेम नहीं है, फिर अभी आपने हेलो। बोला सेम है। हेलो सर। नहीं हाँ बोलिए। सर आपकी प्रीवियस लाइन नहीं आई सर समझ में, इससे पहले जो आपने बोली। नहीं क्या बोला, किसने बोला बताइए। आपने ही बोला सर वो। नहीं वही तो बोल रहा हूँ, क्या कहाँ पे बोला, किसको लेके बोला, वो सर बताओ, अभी थोड़ा आपने तेज आवाज बोला। में बोलो। मेरी आवाज़ धीरे आ रही है क्या सर? बहुत हाँ ज़ोर हाँ। से बोल रहा हूँ मैं। हाँ मेरे पास थोड़ा धीमे आ रही। हाँ बोलिए। सर आपकी आवाज़ नहीं आई सर मुझे ठीक से उस टाइम पे। तो आपने 2 बार बोला ना कि हाँ सर बोलिए, मतलब आ पूछिए रही है। पूछिए, क्या अलग अलग बोला बताइए तो मैं। तो वही तो नहीं आया सर समझ में। ऐसा करो आप ना, चैट बॉक्स में लिख लिख के भेज दो, तो मैं इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करता हूँ। कोई नहीं सर, आप कंटिन्यू करो सर। नहीं नहीं, पूछो पूछो, ऐसे कैसे आगे बढ़ जाएं। सवाल है तो सर सवाल को रिजॉल्व करना जरूरी है। सब पूछो सुना ही पूछो। नहीं दिया सर, समझ भी नहीं आया सर क्या बोला आपने। सर आपने 2 बार बोला ना सेम चीज़ की, मतलब पता नहीं सर आपने बोला कि वो नहीं होती भी नहीं कहाँ है से नहीं लेकिन। सुनाई दिया। तो हाँ। इसके पेज के बाद अगला पेज आपने स्किप करा था जब। सर 9th वाला डिफरेंस वाला। आ, सर नहीं कोई सवाल नहीं है। चलो मैं फिर से समझा दे रहा शुरू से। हाँ, ये समझ में आ गया, ये पिक्चर। सर वो वाला बताओ सर, वो जो हेलो। जो क्लास वाला है सर, क्लास वाला। ये वाला सर, ब्लू ये वाला। वाला। ये। हाँ हाँ ये वाला। हाँ मैं इसमें ये बोल रहा हूँ ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक डेटा होता है, एक फंक्शन होता है, इतना क्लियर है। यस सर, यस सर। हेलो। यस सर। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट पता है क्या होता है। हेलो। यस सर। मैं किससे बात कर रहा हूँ, एक मिनट देखना पड़ेगा। पता हाँ, है सर। ऑब्जेक्ट पता है क्या होता है। यस सर। क्या होता है ऑब्जेक्ट। रियल एंटिटी। कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो कोई भी सर जो। हाँ सर रियल इंटीग्रल उसमें क्या होता है। उसमें मास होता है सर। वो कोई। उसका एक फीचर्स होता है, एक बिहेवियर होता है। यस सर। सर। ठीक है ना। ठीक है सर। सर। आदित्य आदित्य से बात कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। तो उसका एक फीचर होता है, एक बिहेवियर होता है। ठीक है। तो फीचर का मतलब क्या होता है, डेटा होता है और फंक्शन होता है, बिहेवियर। ठीक है, काम करने का तरीका। ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए ये कोई स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 2 है, ये आदित्य है, ऑब्जेक्ट 2 हर्ष है, और ऑब्जेक्ट 3 हिमांशु है। क्लियर। यस ठीक। सर। सबका डेटा अलग अलग है, मतलब सबकी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग है। अलग है। ठीक है। जब भी आप किसी फंक्शन को यूज करते हो, तो वो किसी डेटा पे यूज करते होगे। यस सर। इज इट क्लियर। यस सर। ठीक है। जब उस डेटा पे यूज करते हो, क्यों, तो फंक्शन तो सेम है। आप तीनों के सोचने का तरीका लगभग लगभग डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। जो भी डेटा आपके पास है। क्लियर। चाहे वो आदित्य हो, चाहे हिमांशु हो, चाहे हर्ष हो। ठीक है। लेकिन जो फंक्शन होगा वो सेम होगा, क्योंकि डेटा अलग अलग है, तो जो फंक्शन का जो रिजल्ट होगा वो भी अलग अलग होगा। इज इट क्लियर, इतनी बात समझ में आती है। यस सर। आदित्य। यस सर। अरे यस आदित्य की सर। प्रॉब्लम है, आपको तो समझ में आ रहा है। भाई जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए ठीक है। आ अभी गया क्या है सर ना, ये समझ में। सवाल उससे है जिसको नहीं आ रहा है। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि जब हम इसमें जाते हैं, प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच या प्रोग्रामिंग में, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। यस सर। ठीक है आदित्य। यस सर। इसमें क्या, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए यहां कोई डेटा है। ठीक है। कोई एक डेटा यहां हम पास करते हैं फंक्शन में। यस सर। ठीक है। यस सर। क्लियर। फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपने सीखा। यस सर। हाँ गुड। तो कोई एक डेटा पास करते हैं, फिर उसको रिटर्न करते हैं। मान लीजिए कोई ग्लोबल डेटा मैं लेके चल रहा हूं। ठीक है। क्लियर। तो यहां पे जो डेटा होता है वो शेयर्ड होता है।
ठीक है, अगर मैं कहीं एक जगह चेंज कर दूं तो हो सकता है कि मैं फंक्शन 1 में चेंज करूं और उसका रिफ्लेक्शन फंक्शन 2 में आ जाए, जिसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। क्लियर? ये सी का, या आप कह लीजिए प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच का एक ड्रॉबैक है। क्लियर? उस सर ड्रॉबैक को यहां पे इस प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच है उसमें रिमूव किया गया है। तो यहां पे क्या किया गया, हर एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट से शेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हमने कहा डेटा हाइडिंग। हाइडिंग। ये कितना समझ में आया? यस सर। पूछो। पूछो पूछो। आ गया सर समझ में। हम्म आ गया समझ में। चलिए, अब ये दोनों एक ही जगह एक ही ऑब्जेक्ट के पार्ट हैं। ठीक है, डेटा और फंक्शन, तो इसको कहा गया इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ओके, Yes, sir. इसको कहा गया इनकैप्सुलेशन। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? अगर हम ऊपर की स्लाइड में जाएं तो मैंने एक जगह लिखा था डेटा प्लस फंक्शन इज इक्वल टू Encapsulation. encapsulation. So we can say that encapsulation is a combination of data and Function. function. Is it clear? This is concept. It is clear? Yes, sir. Data and function is called in हेलो, ये इतना क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। Yes, sir. Yes. Sir. Encapsulation. ठीक है। Now next thing, here you can say here is an object 1, object 2 and object 3. So आप अगर बुक को पढ़ाई करेंगे तो आपको लगेगा, आपको ये पढ़ने में आएगा ऑब्जेक्ट इज ए वेरिएबल ऑफ क्लास। लेट मी राइट। ऑब्जेक्ट तो से रियल एंटिटी होती है, लेकिन जब प्रोग्रामिंग की बात करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें, सो लेट मी राइट डाउन हियर, लेट मी राइट डाउन, ऑब्जेक्ट इज ए वेरिएबल ऑफ क्लास। इज इट क्लियर? ठीक है, so object is a variable of class. In this diagram it show there is a class student, and class student there is object 1, or you can write down, इस ऑब्जेक्ट को मैं नाम लिख दे रहा हूं अब, क्योंकि स्टूडेंट 1, क्योंकि क्लास स्टूडेंट है, स्टूडेंट 2, एंड लेट student 3. So student 1, student 2, student 3 are object, okay, of a class student. Okay, so here we can say student 1, student 2, student 3 is a variable of class student. Okay, Yes. any query? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now I am just going to show the typical structure of the object, this structural oriented programming, more complex. Okay, so just wait for 1 minute. I am just showing the more typical example of the control. Okay. It is same procedural. This is same. अच्छा, इसको हम प्रोसीजर भी कह देते हैं, इसको हम फंक्शन भी कह देते हैं, इसको हम एक नाम और देते हैं स्ट्रक्चरल। ठीक है, स्पेलिंग सही है। ओके, सो आइदर यू कॉल इट, मेरे ख्याल से सबको दिखाई दे रहा होगा, आइदर वी कॉल इट
36. चलो. Now, either you call it the procedural object oriented program approach, functional oriented approach, or functional oriented programming, or you may call it structural oriented approach or structural oriented programming. तीनों टर्म सेम है. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा उससे. हियर यू कैन सी, अगर इस फंक्शन को हम तोड़ते चले जाएं, हेलो सर आपकी स्क्रीन में दिख रही है. अगर इस फंक्शन, हाँ, इस फंक्शन को हम तोड़ते चले जाएं तो जैसा आप डायग्राम देख रहे हैं, इट इज ए मोर कॉम्प्लेक्स डायग्राम. इट मींस यू कांट राइट द लॉन्ग प्रोग्राम, and it is, or you can say it is very difficult to write the long program in the structural oriented approach. This is one more drawback. Okay, so here we what we take in the structure, क्योंकि मैं आपको अभी क्या बता रहा हूं, मैं अभी आपको जो स्ट्रक्चरल ओरिएंटेड अप्रोच है या फंक्शनल ओरिएंटेड अप्रोच है या प्रोसीजर जो भी कह लीजिए उसे, उसकी ड्रॉबैक क्या है. तो क्योंकि जब किसी का ड्रॉबैक होता है तब हम किसी नई चीज को डेवलप करते हैं. तो पहले मैं इसकी ड्रॉबैक को थोड़ा आपको डिस्कस कर रहा हूं. आफ्टर दैट आई विल discuss how to remove that drawbacks in the new approach. What is the new approach? New approach क्या है? New approach is a object oriented approach, or you can say object oriented programming. एक मिनट, चैट बॉक्स पर स्क्रीन नहीं, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. हाँ, असल में ओके, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं. ये क्या है? दिक्री ब्रो, ये क्या है? दिक्री ब्रो, ये क्या लिखा है भाई? ये आकाश, आकाश कहाँ गया? आकाश, हेलो आकाश, आकाश नहीं है क्या? पता नहीं क्या लिखा है. आकाश चौहान, हेलो आकाश चौहान, एक मिनट, आकाश चौहान कहाँ चला गया? मैं बोल रहा हूँ सर. आकाश, हाँ, सर, ये screen क्या play- क्या लिखा है? स्क्रीन Screen दिख रही है? यस सर. अच्छा, ऊपर लिखा है दिक्री ब्रो. सर स्क्रीन प्ले ये बोल ब्रो रहा हूँ. कौन है? हाँ, भाई भाई भाई. Brother. अच्छा 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 अच्छा, दूसको ब्रो बोल रहे थे. चलो, मैंने कहा डिग्री किसका नाम हो गया भाई. चलो ठीक है, चलिए एक दो लेक्चर में समझ में आ जाएगा. थोड़ा ट्यूनिंग बैठने में टाइम लगता है, लेकिन ऑनलाइन लेक्चर ठीक है. तो वी आर डिस्कसिंग, क्योंकि मैं ना क्या बोल रहा हूँ कि मैं अपने मोबाइल में चैट देख रहा हूँ, तो मोबाइल को मैं बिल्कुल अपने माउथ के पास आके बोल रहा हूँ कि आवाज मेरी बिल्कुल भी वीक ना हो. ठीक है, और थोड़ा तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ से, कि कोई भी नेटवर्क इश्यू हो तो आवाज कम से कम पहुंच जाए किसी तरीके से, क्योंकि अपना एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा मेरे को. तो मैं चैट बॉक्स ना नहीं देख रहा हूँ. मैं चैट बॉक्स कह रहा हूँ 2-3 मिनट बाद देखने की कोशिश कर रहा हूँ. कभी कभी 5-6 मिनट लग जा रहे हैं मेरे को चैट बॉक्स देखने में. तो इसीलिए चैट बॉक्स देखने में मेरे को डिले हो रहा है, कम से कम 5-6 मिनट का मैक्सिमम, और मिनिमम 2-3 मिनट का. ओके, लेट बिगिन. सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, इसको थोड़ा नीचे कर लें. हाँ, ऑल्ट एफ. ओके, वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट दी फंक्शनल ओरिएंटेड इसी को हम फंक्शनल, देखिए सवाल कुछ भी आ सकता है. सवाल ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड द प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो जहां पे फंक्शन प्रोसीजरल स्ट्रक्चर आ जाए वो एक ही है. क्लियर, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस procedural oriented approach. Okay, so here there is a main program, and on the basis of data we pass the data to all these function according to their problem, and this function may be further divided into function. लेकिन कब तक आप इस फंक्शन को डिवाइड करते रहेंगे और कब तक उस डेटा को, so it become more complex. Okay, so overcome that complexity we required some new kind of approaches. Then to overcome this we use the object oriented programming approach. Okay, let's learn some new thing.
one more thing. So in the procedural oriented approach, the problem is viewed as a sequence of things to be done, such as reading, calculating, printing. Okay, clear? Such as COBOL, font and C. तो जो भी चीजें एक सीक्वेंस में दिखाई देती है, ठीक है, the primary focus is on the function. Okay, that's why it is called a procedural function structure kind of thing. A typical structure is, अच्छा ठीक है. So here what we do in hierarchy, we decomposing the our data. Okay, so there are some characteristics of the procedural oriented programming. फिर उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में चलते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. Okay, so here it is a characteristics of procedural oriented programming. ये इसकी characteristics है. Okay, let control Z. अभी मैं इसको enlarge कर रहा हूँ. control X, control V. अरे ठीक है. Shift F. Now it is visible to everyone some characteristics of exhibited by the procedural oriented approach. What is emphasis on the doing the things algorithm. जब भी हम C की बात करते हैं तो algorithm की बात करते हैं. Okay, large problem are divided into smaller problem known as function. Okay, most of the function share the global data. तो ज्यादातर function global data use करते हैं and sometime this global data create a confusion. Okay, to handle this global data is very critical in the in the procedural approach or structural approach. Data move openly around the system from function to function. जैसा आप डायग्राम में देख चुके हैं. If I use some data here, okay, let I write the int. Okay, ये स्मॉल में समझ लीजिए, कैपिटल में लिख गया int a. Okay, so if I write a in main, so we can pass this data and it may become very complex. Okay, अगर लंबा प्रोग्राम हो, ठीक है. फंक्शन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एम्प्लॉय टॉप डाउन अप्रोच. ये हमने पहली बार में पढ़ा था. व्हाट इज मीनिंग ऑफ टॉप डाउन अप्रोच? इन दिस अप्रोच वी टेक वन बिग प्रॉब्लम एंड दैट बिग प्रॉब्लम इज divided into a smaller problem. Okay, so this concept is called the top down approach. So this is the basic characteristics of the structure oriented programming. इन कोई सवाल हो तो पूछिए, फिर मैं ऑब्जेक्ट पे मूव करूं. एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? चैट बॉक्स चेक कर लेता हूं. No, sir. Okay, now move on to the next. Object oriented approach. Okay, so let some features of control. Okay, now move on to object oriented approach. Okay, so what is object oriented approach? In object oriented approach, what is the characteristics of object oriented approach basically? So these are the some difference. अगर difference आ जाए तो आपको इसी तरह difference लिखना है, ठीक है. So emphasis is on the data rather than procedure. In the object oriented approach, our emphasis on the data. You can see because here we are talking, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम data hiding की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो प्रोसीजर फंक्शन पे कोई हमारा इतना जोर नहीं है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारा जोर है डेटा पे. ओके, प्रॉब्लम्स आर डिवाइडेड. वेयर इज माय कर्सर? ओके, हियर.
So let uh, arrow option visible. Okay, इसे करके देखें. So here ये थोड़ा सही है. Here we are focusing on the object. सबको पता है object क्या होता है, अभी पढ़ के आ रहे हैं. Next is data structure are designed in such that they are characterize the object. हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेड आगे पीछे रहे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो एक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है. ठीक है. और स्ट्रक्चर में क्या है, जितना भी कॉन्सेप्ट है वो एक प्रोसीजर या स्ट्रक्चर या फंक्शन के इर्द गिर्द घूम रहा है. ओके. Function that operate on the data of an object are tied together in the data structure. Okay. So what is meaning of this line? What is meaning of this line? Okay. Just a minute. Automatic. Okay. What is the meaning of this line? Function that operate the data of an object are tied together in the data in the together in the data structure. So here it talking about this concept. This concept. Here you can see this student is object 1, and here this object is oriented around the function data and the function. Okay. Now data is hidden. You know what is meaning of data is hidden and cannot be accessed by the external function. What is meaning of external function? You can see it here. आप जैसा देख सकते हैं, अगर ये फंक्शन चाहे, चलिए इसका नाम ये फंक्शन चाहे तो ये डेटा एक्सेस नहीं कर सकता. इस डेटा को सिर्फ यही फंक्शन एक्सेस कर सकता है और कोई एक्सटर्नल मतलब ये या ये. ओके. लेट मी राइट डाउन द नेम. discard. This is the function 1. Okay, this is the data 1 because it is object 1, क्योंकि मैं सारे डेटा को सारे इसको अलग अलग कर सकूं. This is function 2. This is data 3. This is function 3. One more thing, function is containing this property having the bracket. So क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और रिफाइन करते चले जाएंगे अपने आप को. Okay, this is a basic and there is a no space. Function 1 चलो underscore लगा दे रहा. Okay, now fine. So here you can see what is meaning of external function. External function means function 1 is internal function of this student 1, but function 2 and function 3 are an external function for this object student 1. So accidentally भी नहीं हो सकता है कि function 2 and function 3 इस डेटा को एक्सेस कर लें. Clear? So this is the advantage of OOPS. Okay. Now next is ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू फंक्शन. ओके, इस डायग्राम में आपने देखा ही था, कल हमने देखा ही था. यहां पे अगर ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट करना है विद द अदर ऑब्जेक्ट, इट कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ फंक्शन. एनी क्वेरी? नो क्वेरी. ओके. सो हाउ इट ये कैसे होता है, हाउ इट इज पॉसिबल, ये हम तब सीखेंगे जब हम C++ या जावा की प्रोग्रामिंग करेंगे. ओके, बट दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस oops. Okay. Next, function transfer data from one form to another. Okay, this is a but internal. Okay, and employee top down. Okay, ये एक मिनट यहाँ पे था ना, मैं कहा. ठीक है, मैं भी कहूँ क्या मैं बोल रहा हूँ. New data and function can be easily added whenever necessary. So here new data, how it is easily added in the object oriented programming. Okay. सो कोई बता सकता है कि इन दोनों अप्रोच में, एक अप्रोच तो ये हो गई जो मैं कह रहा हूं कि प्रोसीजर अप्रोच है जिसमें आप पूरा डायग्राम इस तरह से होता है, और एक अप्रोच ये हो गई. ठीक है. तो इस अप्रोच में ये कहा जा रहा है कि इसमें डेटा को ऐड करना इजी है इन कंपेरिजन टू दिस. सो व्हाट विल बी द लॉजिक बिहाइंड इट फ्रॉम योर साइड? कोई बता सकता है ऐसा क्यों कहा जा रहा है? Yes, anyone? Hello? Am I audible? Am I audible?
Can anybody explain me this line? New data and function can be easily added whenever necessary. Anyone? Anyone? अच्छा मैं लिख दे रहा. Yes, now it is. You can see the query on the chat box. Yes, good. Himanshu is right. Okay, because when you edit, जब भी आप कोई add करते हैं, it is not reflect on the, as you can see in the diagram. Okay, अगर इस diagram को आप ध्यान से देखें, so when you see this diagram, here if you add the data, it will not show any impression or not affect. Affect ज़्यादा अच्छा word है. It will not affect this data. If you add there, it will not affect this one. Okay, so that why it is very easy to add and function. But if you look this one, अगर आप इसको देखते हैं ध्यान से, इस डायग्राम को देखते हैं ध्यान से, अगर आप यहाँ पे एक भी डेटा ऐड करते हैं, so it might be possible that it disturb the other function because function is working on the data passing. Is it clear to everyone? Yes, sir. Aarti is also saying good. Okay, is it clear? Is it clear? Is it clear? Neha is saying yes. It is clear. Anybody who have any doubt? Himanshu, yes. Okay. Now move further. Thank you. Okay. So, like last point of this, follow the bottom-up approach in the programming design. So this is a basic difference between these two. Here in the procedural approach, we use the top down, but in the object oriented approach we use the bottom up approach. Okay, ह्यूमन बीइंग भी ऐसे ही करता है. ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि अगर उसको कैसे देखें, कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम में तोड़ के रिजॉल्व करके फिर बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. सो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बॉटम अप अप्रोच. ओके, सो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करके फिर एक प्रोग्राम पे जाते हैं. ठीक है, लेकिन प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या होता है, आप एक बड़ी सी प्रॉब्लम लेते हो, उसको सॉल्व करने के लिए फिर उसको तोड़ते चले जाते हो. ठीक है, so this is the basic difference between the bottom up approach and the top down approach. Any query? Any query? So today we learned what is the differences between the bottom up approach and top down approach. No sir, no query. Okay, thank you. So let here I write. So any query? Okay. So अभी तो नहीं है सर, अभी क्वेरी. today we learned the differences between the procedure oriented programming POP and object oriented programming OP. ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये जाना कि what is the one more thing apart from this we learned what is POP. POP means procedural ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. आप इसे अप्रोच कह लीजिए, चाहे एसओपी कह लीजिए, चाहे इसे एसओपी कह लीजिए. इट इज आइदर एसओपी और एफओपी. So POP means procedural object programming, SOP means structure object programming and FOP means functional oriented programming. तीनों एक ही नाम है, प्लीज तीनों से कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है, क्योंकि अलग अलग बुक उठाएंगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिए, लेकिन सबका मतलब एक ही है. ओके, सो दिस टू कॉन्सेप्ट वी विल लर्न. ओके, एनी अदर थिंग? ओके, ये तो बेसिक पढ़ा हमने. अच्छा, एक और चीज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू. वेरी, जस्ट अ मिनट, वेरी
important person in the interview. Impure, very important person in the interview. Is it clear? So ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताओ भाई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीओपी एंड ओओपी. ओके, एंड टाइम हो रहा है तो मैं बस छोड़ रहा हूँ. इन इन नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे बता दूं. इन नेक्स्ट class we will study the properties of the hoop. ठीक है, अगली क्लास में हम व्हाट आर दी, अभी तक हमने दो ही प्रॉपर्टी देखी है. क्या देखा है? दो प्रॉपर्टी में दो तीन कॉन्सेप्ट समझे, दो कॉन्सेप्ट समझे हैं, तीन कॉन्सेप्ट समझे हैं बेसिकली. कह लीजिए ऑब्जेक्ट समझा है, क्लास समझा है, इनकैप्सुलेशन समझा है और डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट समझा है. ठीक है, लेकिन और भी कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक इनहेरिटेंस. मैं भी नाम ले रहा, कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. मतलब कल का मतलब इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मैसेज पासिंग, ऑल दिस आल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं मिलेगा. इज इट क्लियर? यस सर. लेट्स राइट डाउन. ओके, ठीक है, फिर अटेंडेंस लेते हैं. कोई क्वेरी हो तो पूछो, एनी क्वेरी, क्योंकि लेक्चर में एंड, आज का लेक्चर खत्म. एंड थैंक्स फॉर द लेक्चर. प्लीज पुट अप योर क्वेरीज. कोई सवाल हो तो पूछो, मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ. नो सर, नो सर. ओके, ये ठीक है. आरती, प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर. अभिषेक, प्रेजेंट सर. आदित्य, प्रेजेंट. अमन, प्रेजेंट सर. अंकिता, ओके. व्हाट आई विल डू, पहले मैं एक बार अटेंडेंस ले लूंगा, जिसका नाम छूटेगा उसका मैं फिर से नाम लूंगा. ओके. अनुज, प्रेजेंट सर. आशीष, प्रेजेंट सर. आशीष, प्रेजेंट सर. ठीक है. आयुष, जिनकी जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो अपना माइक माइक एक मिनट जिनकी अटेंडेंस हो गई है अपना माइक प्लीज स्विच ऑफ कर लें, और जिनको लग रहा है कि उनकी अटेंडेंस लग गई है वो लेफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, और जिनका नंबर आए वही अपना माइक ओपन करें. आयुष, प्रेजेंट सर. आयुष, आयुष, ठीक है. प्रेजेंट सर. दीक्षा, हाँ दीक्षा, ठीक. हाँ हाँ, जैसे आप बोलोगे ना मैं ठीक है यस बोल दूंगा, इसका मतलब कि मैंने सुन लिया है. ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट है. देवाशीष, देवाशीष एब्सेंट. चलो फिर से नाम लेंगे. हर्ष, हर्ष, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. हाँ, हिमांशु, हिमांशु, प्रेजेंट सर. अरे थे तो, हाँ ठीक है. प्रेजेंट सर. हाँ हाँ, लग गया लग गया. ईशा, प्रेजेंट सर. ठीक. नमन, नहीं, चलो बाद में लेते हैं फिर से. नेहा, प्रेजेंट सर. ठीक है बेटा. प्रतीक्षा, प्रतीक्षा है, नहीं है. ओके. प्रियांशु, प्रियांशु भी नहीं है, चलो बाद में. सीमा, सीमा भी प्रेजेंट नहीं है. सर. प्रेजेंट सर. प्रियांशु, ठीक है. ये प्रियांशु, ठीक है, प्रियांशु लगा दिए. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. सीमा नहीं है. ओके. शिवांगी, यस सर. शिवांगी कल कहाँ चले गए थे?
सर ये आकाश सर चेकअप प्रेजेंट सर। चेकअप हो रहा है हमारे यहाँ, तब गए थे बाहर। अच्छा हाँ जी। आकाश प्रेजेंट सर। ठीक है, हो गया हाँ, हो गया। अभिषेक प्रेजेंट सर। अभिषेक कहाँ है? सर प्रेजेंट हूँ सर, मैं आया हूँ ठीक सर, है। प्रेजेंट सर। असल में जैसे आपका नाम है ना, पहले केसवाल है फिर अभिषेक है, और जो रजिस्टर में नाम है वो अभिषेक केसवाल है, तो वो थोड़ा देखने में ना टाइम लगता है। चलिए कोई कोई बात बात नहीं सर, मैं प्रेजेंट हूँ सर। अनुभव अनुभव नहीं है, एब्सेंट। दीपक, चलिए मैं जिनका नाम छूट गया फिर से ले रहा। यस सर। ये देवाशीष, दीपक रावत, ठीक है प्रेजेंट। ठीक है, मैं उसका नाम फिर से ले रहा हूँ सर जिनका प्रेजेंट दीपक जिनके। हाँ दीपक, लगा दिया बेटा, लगा दिया। ठीक है थैंक यू सर। देवाशीष, एक मिनट। हाँ सर, हाँ नो सर, हाँ ठीक है सर, ठीक है आज ही देना है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई इशू नहीं सर। ठीक है सर, ठीक है, ओके थैंक यू। सॉरी, वो विनीत सर का फोन आ गया था मीटिंग के रिगार्डिंग। चलिए फिर से देवाशीष है, देवाशीष नहीं है, एब्सेंट, देवाशीष एब्सेंट। मैं अगर आप किसी वजह से नेटवर्क इशू से आप नहीं बोल पा रहे हैं, अटेंडेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो आप चैट बॉक्स में दीजिए। नमन नेगी, नमन नेगी भी नहीं है, एब्सेंट। चैट बॉक्स में भी नहीं आया कुछ, एब्सेंट। ओके। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा है ना, नहीं, एब्सेंट। सीमा, सीमा है नहीं, एब्सेंट। और ये अनुभव यादव है ना, एब्सेंट। ठीक है, क्लास ओवर।